Yeah, very good evening, all of you, beta. We are going to start with some basic concept of CBSE first chapter of your 11th grade. Now, we are going to express concentration. Concentration का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने पानी लिया, उसके अंदर कितना सल्यूट डाला है. I can express that in various way. First is what? Mass percent of solute. Mass percent को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? Weight by weight of solute. When I say mass percent of solute, what I'll write? Weight percent, weight of solute upon weight of solute plus solvent into 100. ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन. फिर बाद में अगर मैंने लिखा मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ऊपर कौन आएगा बोलो बेटा? ये सोल्यूट होता था ना, तो ऊपर खाली कौन आएगा बेटा? सॉल्वेंट. बाकी पूरा पार्ट क्या रहेगा? सेम. फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे? अगर मैंने आपको बोला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, तो ऊपर बेटा कौन आएगा? टेल मी बेटा, व्हाट विल कम? वॉल्यूम. एंड बिलो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100. If I say beta volume percent of solvent and above will be solvent, बाकी सब कुछ सेम होगा. Now this is very important. Weight by volume. Weight by volume में क्या होगा बोलो? If I say weight by volume of solute, तो ऊपर कौन होगा बोलो बेटा? ऊपर कौन होगा? Weight. Below will be what? Volume. Now if I say solvent, then ऊपर weight किसका लिखने का? Solvent. नीचे क्या होगा बेटा? Volume of solution into 100. अच्छा, आपको पता है ये कहाँ पे लिखा हुआ रहता है? वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. डू यू नो वेर यू? आप कोई भी बेटा आप शैम्पू आज घर पे जाके देखना, कंडीशनर, उसके पीछे लिखा रहता है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट. परफ्यूम, डिओड्रेंट, सोप, सैनिटाइजर, सबके पीछे लिखा हुआ रहता है वेट बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. पीपीएम, व्हाट डू यू मीन बाय पीपीएम? पीपीएम इज व्हाट बेटा? पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर, अब तक क्या हो रहा था? परसेंट. therefore we are multiplying by 100. now we are doing what beta? Per million. so I'll multiply by what beta? 10 raised to 6. I'll send this for पूरा ही मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा बेटा. don't worry. weight by weight of solute one weight of solution into 10 raised to 6. solvent बोला तो ऊपर कौन आएगा बेटा? solvent. clear है? right. now we have to understand what is number of moles. what is number of moles का formula बोलो बेटा? given mass upon molar mass. given mass upon, so this will be given mass upon molar mass. And what is the symbol for mole? What we are going to write beta? N. What we are going to write? If I write N solute, how will you read this? Number of moles of solute is equal to weight of solute upon molar mass of solute. Whenever I write beta W solute means given mass. Whenever I write M solute means molar. What it is? Molar mass. If I write N solvent means what? Number of moles of solvent. What is the formula? Weight of solvent upon molar mass of solvent. Is this clear? Then beta we have mole fraction. What we have? Mole fraction. Mole fraction means in a solution we take two things. One is solute and another one is solvent. So what is the contribution of solute? What is the contribution of solvent? So mole fraction of solute, what is the formula? Number of moles of solute upon number of moles of solute plus solvent करेगा तो solution मिलेगा कि नहीं? Suppose beta in exam this solute is not given, then what I can write? Can I write this or not in front of this? In place of N solute, can I write this? Weight of solute upon molar mass of solute. Right beta? Acha, for below what was written beta here? N solute, again I can write the same thing. Can you see? And for N solvent, what I'll write? This, na? Weight of solvent upon molar mass of. Difficult little here. Okay. Similarly, beta, for mole fraction, what is the symbol X? If I write mole fraction of solvent, what will be the formula? Below part will remain one and the same. Only the top part I'll change or not. Tell me. N solute upon N, instead of N solute, what I'll use beta? Number of moles of solute के जगह पे क्या आएगा? Number of moles of solvent. And this we know ना beta what it is. अच्छा, can I write instead of N number of moles of solvent के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? Weight of solvent upon molar mass of solvent. Are you getting it, beta? Tell me. So same formula I'll get, but only thing is what beta? Here above part will be weight of solute upon molar mass of solvent. What is molar mass? Do you know beta? What is molar mass? Mass of total mass. Okay, I'll teach that also. Okay, any difficulty till here? Clear? Right? Shall I go to the next part? अच्छा बेटा अभी याद रखना, अगर मैंने कभी आपको ऐसा फॉर्मूला लिखा है, प्लीज कम. You can sit here, ma'am. No, it's provided. Be down. 5:15 तक मैं ट्राई करूंगा. 5:10 तक. यहाँ पे 2-3 लेन है मैम, आप इवन पार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, okay.
Okay, yeah. Mole fraction and weight of solvent upon this we have done, beta. Now, what very important thing, if I tell you, beta, mole fraction of solute plus mole fraction of solvent, कितना होगा बेटा? चलो, tell me what was the mole fraction of solute? Tell me what was the formula? हाँ, number of moles of solute upon what बेटा? Number of moles of solute plus solution basically. Number of moles of solution. And for what was the formula for this beta? Number of moles of solution is nothing but beta what? Solute plus solvent ही था ना बेटा? Okay. Plus what will be for this? Number of moles of solvent. And what beta? Number of moles of solute plus number of moles of solvent. ऐसा करेंगे कि नहीं? अच्छा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. If denominator is same, so what I'll get at the top? Number of moles of solute plus number of moles of solvent. And same thing what I'll get below also or not? Tell me beta. Number of moles of solute plus number of moles of solvent. Okay. So hey, this will cancel or not? So what answer I'll get? 1. So what is number of moles of solute plus solvent will be always equal to? तो बेटा कभी समय अगर आपको पूछेगा दोनों ढूंढने के लिए तो फर्स्ट व्हाट विल कैलकुलेट एक्स सोल्यूट विल कैलकुलेट बाय फॉर्मूला बट फॉर सॉल्वेंट व्हाट विल डू 1 minus mole fraction of solute. Are you getting it बेटा? So this is what it is बेटा. क्लियर है? नंबर एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ solute plus solvent 1 कैसे आ गया वो समझ में आ गया. So these are the different ways of concentration. Okay, अभी इस पे सम कैसे आ सकते हैं? The one which we have done earlier, this. तो आपका है ना, मैं पहला उदाहरण का आपको बता देता. ये देखो बेटा, सम बेसिक फॉर्मूला में बेटा न्यूमेरिकल्स कहाँ गया बेटा? क्या यार कुछ न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन वाले सम. हाँ ये रहा बेटा. चलो पहला वाला ये पढ़ो. क्या लिखा है? कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज. तो मतलब क्या बोला है? मास परसेंट मतलब क्या ढूंढने का तुमको? W/W% ऑफ व्हाट बेटा? ग्लूकोज. तो व्हाट वाज द फॉर्मूला? टेल मी. नहीं, मास परसेंट के लिए क्या था बेटा? वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन वेट ऑफ ग्लूकोज प्लस वेट ऑफ वाटर. अरे ग्लूकोज को मैंने किसमें डाला है? वाटर के अंदर डाला कि नहीं? इंटू 100. व्हाट इज वेट ऑफ ग्लूकोज यार? टेल मी बेटा. 10. तो 10/10 प्लस वाटर का वेट कितना है? 200 इंटू 100 हो गया बेटा. इजी कैलकुलेशन यू कैन डू. इजी है ना बेटा? पक्का. वेट परसेंट वाला मैंने बता, मोल फ्रैक्शन वाला कोई है क्या? देखता हूँ मैं बेटा. तो फास्ट जा रहा हो बेटा, तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट कराना है. समझ रहा ना बेटा? पक्का ना? श्योर? हाँ देख बेटा, ये आ गया. कैलकुलेट क्या बोला? बोल बेटा. मास परसेंट ऑफ व्हाट? बेंजीन. बराबर है. बेंजीन का बोला है तो वेट बाय वेट ढूंढना है कि नहीं? बोलो बेटा. तो यहाँ पे क्या लिखेगी? वेट ऑफ बेंजीन अपॉन वेट ऑफ बेंजीन को हम लोग ने किसमें डाला है? बोलो बेटा. हाँ, तो वेट ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने लिख दिया. वेट ऑफ बराबर है. कितना दिया बेंजीन का? इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इंटू 100 ना बेटा. तो 22 अपॉन क्या होगा? बोलो 22 प्लस 122. आ गया कि नहीं? बोलो बेटा. हेलो. इजी. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. ये आप लोग को स्कूल से कुछ मिला कि नहीं? ये ऐसा कुछ क्वेश्चन बैंक विद सोल्यूशन मिला ना? हाँ, यही सब समय वहां पे देखना बेटा. खाली आपको खाली वो अभी असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए. दैट इज आल्सो इजी बेटा. डोंट वरी. तुम लोग लेटेस्ट वाला मुझे भेज दो तो आई विल ओपन अप दैट एंड आई विल टीच यू ना बेटा. जो लेटेस्ट व्हेन यू सेंड मी द सोल्यूशन वाला तो हम लोग ओपन करके आई विल टीच यू फटाफट. ओके, अभी मैं तुमको ना बता भी देता मोल फ्रैक्शन वाला सम कैसा होगा बेटा. हाँ देख, अभी यहाँ पे क्या, नहीं ये अभी आपको नहीं आएगा. मोल फ्रैक्शन के सम बेटा मैं तुमको एकदम सिंपल वाला बता देता पहले. चलो एक बेटा, अभी ना एग्जाम में ऐसा सम आएगा, मैं सम के साथ में तेरे को बता देता हूँ. हाँ देखिए, अभी हम लोग ने किया कि नहीं? देखिए 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अभी हम लोग ने किया था ना ऐसा सम. अभी बेटा देख, तेरे को यहाँ पे क्या पूछा है? रीड द सम. व्हाट इज रिटन? 90 ग्राम ऑफ glucose is dissolved in 90 gram of, find mole fraction of both glucose and water. तो अच्छा मेरे को बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला था? बोलो बेटा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ. अच्छा, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज दिया है क्या इसमें? नो ना. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलार मास ऑफ ग्लूकोज. राइट बेटा? अरे व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स?
गिवन मास अपॉन मोलार मास। वापिस इसके लिए भी मैं वही डाल सकता हूँ कि नहीं, गिवन मास अपॉन मोलार मास किसका, ग्लूकोज का। फिर वाटर के लिए भी क्या फॉर्मूला होगा, गिवन मास अपॉन मोलार मास ऑफ वाटर। अच्छा अभी बेटा आप मेरे को बताओ, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है, बोलो बेटा 90, तो ऊपर में 90। अच्छा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। अच्छा ये आपको दे गया बेटा एग्जाम में, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। कर पाओगे ना बेटा, तो ये आप बेटा ये सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर तुमको कितना आएगा पता है क्या, 180 आएगा। कितना आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा ऊपर, बोलो बेटा 90/180। यहाँ पे भी क्या आएगा, बोलो बेटा 90 अपॉन वाटर का कितना होता है बेटा फॉर्मूला H2O, राइट ना बेटा 18। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोलो बेटा 18 अपॉन, सॉरी गिवन मास कितना है वाटर का, बोलो बेटा 90, 90/18। क्लियर है, तो अभी आप ये पूरा कर पाओगे ना बेटा, विल गेट। तो आपको मोल फ्रैक्शन किसका मिल जाएगा, ग्लूकोज। यार ये इंडिविजुअली मोल्स ढूंढने से अच्छा बेटा आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना बेटा इसमें, राइट। फिर मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का आपको कितना आया, देखो कुछ इतना आया बेटा 0.09। तो अभी बेटा मोल फ्रैक्शन का वाटर का ढूंढने का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज हाउ मच, टोटल इज 1 ना। therefore मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी हाउ मच, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, सो 1 माइनस, अरे गेटिंग इट, बोलो ना कितना आएगा, 9 1 ना। ओके इजी, मीका आर यू गेटिंग इट ना पक्का। यू नो ना हाउ टू फाइंड मोलार मास। बेटा तू बोल मुझे यार, मैं तुमको थोड़ा बेसिक से बताऊंगा। एटॉमिक मास वो लोग देंगे, जितना टाइम्स एटम्स है दैट मेनी टाइम्स यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। तो मैंने किस किस का सम बना दिया तेरे को, वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो आएगा ना गिवन मास अपॉन मोलार मास। नाउ वी हैव टू गो फॉर व्हाट, मोलैरिटी। क्या करेंगे बेटा, मोलैरिटी, मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज व्हाट, ओके मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है पता है क्या बेटा, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज व्हाट बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट शुड बी ऑलवेज इन लीटर और डीएमक्यू, लीटर और, अच्छा ये क्या मोल है ना बेटा, मोल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट अपॉन मोलार मास। तो देख बेटा अभी मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या लिखा, वेट अपॉन मोलार मास, कैन आई राइट दिस। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज रहेगा, बट वॉल्यूम शुड बी ऑलवेज इन लीटर और डीएम क्यूब, लीटर और डीएम क्यूब। ओके इट शुड बी ऑलवेज इन व्हाट बेटा, लीटर और डीएम क्यूब। क्लियर। अगर वो लोग ने एमएल में दिया रहेगा तो विल कन्वर्ट दैट इनटू लीटर। No, no. If it is given in ml, dm cube and liter is one and the same. 1 liter is 1 dm cube. Okay. But if it is given in ml, so 1 liter is how many ml? 1000 ml. So ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो you have to divide by 1000. Are you getting it? पक्का। अभी बेटा अच्छा एग्जाम में भी what type of sum they will ask you to find molarity. मोलैरिटी, अच्छा व्हाट विल बी द यूनिट, ऊपर क्या है बोलो बेटा मोल, नीचे क्या लीटर, सो व्हाट इज द यूनिट, मोल पर, और इंस्टेड ऑफ लीटर आई कैन राइट डीएम क्यूब और नॉट, टेल मी। तो मोल पर डीएम क्यूब, एंड मोल पर डीएम क्यूब को क्या कहते हैं, 1 मोलार। क्या कहते हैं, कैपिटल एम इज नथिंग बट 1 मोलार। ओके। अच्छा बेटा अभी एक मजेदार बात है, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम, एक्सपांड। तो व्हाट विल हैपन टू योर मोलैरिटी, डिनोमिनेटर तेरा बढ़ेगा ना, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, कम। तो एग्जाम में ये एमसीक्यू आएगा बेटा, मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम और नॉट, टेल मी। ये तो वॉल्यूम इन टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, मोलैरिटी, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, मोलैरिटी। सो व्हाट इज द रिलेशन, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, गॉट इट, पक्का। बस आपको बेटा मोलैरिटी और मोलालिटी, नॉर्मेलिटी नहीं कराया है ना आप लोगों को, नहीं है भी नहीं आपके सिलेबस में, नहीं है। जेई में हम लोग पढ़ते बेटा, जेई एंड नीट, नीट मोलालिटी, मोलालिटी, लाल मोलालिटी क्यों लेना पड़ा मुझे बताओ सबसे। हम लोग मोलारिटी में क्या लेते थे, वॉल्यूम। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा, मैंने कुछ सोल्यूशन बनाया मोलार सोल्यूशन, कुछ तो मोलार सोल्यूशन, बाजू का टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं। बट एक्सपेरिमेंट में बेटा ऐसा कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना चाहिए, तो साइंटिस्ट लोग ने बोला हम लोग मोलैरिटी नहीं लेंगे, कुछ नया लेंगे। क्या लेंगे, मोलालिटी, मोला
मोलालिटी का सिंबल क्या है? स्मॉल है। मोलालिटी का सिंबल क्या है? सो स्मॉल है। मोलालिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद रखना, अगर सॉल्वेंट वो लोग ने बेटा केजी में नहीं दिया रहेगा तो विल कन्वर्ट दैट इनटू केजी। अभी पूरे में देख बेटा। अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं रहेगा तो तू क्या लिखेगी बोलो बेटा? हाँ, वेट ऑफ सोल्यूट अपन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। आर यू गेटिंग? इंस्टेड ऑफ दिस कैन आई राइट दिस? बोलो ना। अच्छा, पूरे में देख बेटा, यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो वेट को कभी फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे आजू बाजू का टेम्परेचर चेंज करोगे, आपका वेट को कुछ होगा क्या? नहीं ना। तो मोलालिटी इज व्हाट? इंडिपेंडेंट। एमसीक्यू में आएगा, मोलालिटी इज व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट वॉल्यूम डिपेंडेंट। बरोबर है? इसमें वॉल्यूम कहाँ पे था क्या? अच्छा, यूनिट क्या होगा? ऊपर कौन है बोल बेटा? मोल। और नीचे क्या है? केजी। तो मोल पर, इसको स्मॉल एम भी बोलते हैं, मोलार। क्या बोलते हैं? मोलार। मोलार। अब बेटा आगे बढ़ेगा तुम। यू सेंड मी द न्यू, तेरा जो भी नया जो आया रहेगा ना, तो मैं क्या करूंगा वो ओपन करके। अच्छा बेटा, मैं क्या बोल रहा पता है क्या? तुम्हारा टेस्ट कब है? डेट अगर आप मेरे को बोलिएगा तो थोड़ा बेटा ना, सैटरडे को आपका क्या रहता है? कुछ नहीं होता है? नहीं, इवनिंग का नहीं, मॉर्निंग में क्या होता है? स्कूल है? नहीं होता है ना स्कूल, कुछ होता नहीं है ना, पक्का ना? तो दिख नहीं बोला। हाँ, 20, हाँ वो मैं समझ गया बेटा, लेकिन ठीक है। बिकॉज देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वांटम नंबर नहीं करा ना बेटा, तेरे को कुछ नहीं आएगा आगे, पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा, 10 जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे पहले बंदा। हाँ, पूरा अलग है। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग आएगा उससे। सो आई हैव टू टीच दैट। क्वांटम नंबर आपको तो आया ना बेटा, पूरा अच्छे से समझा ना कैसा होता? चलो आ जाओ बेटा। एग्जाम में बेटा भी हिडन इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? हिडन इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? सपोज इफ आई राइट x% बाय मास, सपोज ऐसा मैंने लिखा 20% बाय मास ऑफ HCl, मीन्स व्हाट? वेट ऑफ सोल्यूट विल बी x। अरे बेटा x% लिखा है तो वेट ऑफ सोल्यूट विल बी x, तो सॉल्वेंट का कितना होगा? 100 माइनस x, और टोटल कितना होगा? 100 ना बेटा। वेट ऑफ सोल्यूट विल बी x, वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी 100 माइनस x, एंड वेट ऑफ सोल्यूशन विल बी 100। सपोज बेटा मैंने तेरे को बोला 20% ऑफ HCl मीन्स व्हाट? वेट ऑफ सोल्यूट मतलब वेट ऑफ HCl विल बी हाउ मच? 20। वेट ऑफ वाटर विल बी हाउ मच? 80, एंड टोटल विल बी 100। इजी ना बेटा? x% बाय वॉल्यूम बोला तो सेम थिंग ना। इंस्टेड ऑफ वेट व्हाट आई से, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज x। परसेंट होता 100 ml होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विल बी 100 माइनस x, एंड टोटल सोल्यूशन का कितना होगा? 100 ml। क्लियर है? एग्जाम में बहुत बार बेटा वेट नहीं देंगे सोल्यूट सॉल्वेंट का, उसके जगह क्या लिखा रहेगा? x%, मतलब 20%, 30%। विल यू बी एबल टू डू इट? ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। एक्स मोलार अगर लिखा है एग्जाम में, एक्स मोलार, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला था बेटा? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद आ रहा है कि नहीं? तो बेटा अगर एक्स मोलार लिखा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? एक्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट कितना लेने का? 1 kg। सपोज बेटा मैंने एक्स की जगह पे 0.1 लिखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? अगर ये 0.2 लिखा रहता तो आप क्या लेते बोलो? और वेट ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा बाय डिफॉल्ट कितना लेने का? 1 kg इज 1000 ग्राम। इतना समझ में आता है? सिमिलरली आप ही अभी बताओ मेरे को, अगर मैंने एक्स मोलार, मोलार मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी में नीचे वॉल्यूम आता था, याद आ रहा है? तो एक्स मोलार लिखा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? एक्स। सपोज बेटा मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है आपको 0.1 मोलार, तो इसको तो क्या लिखेगी बेटा? 0.1। 0.2 लिखा है तो 0.2, तो 0.3 लिखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी ऑलवेज 1 लीटर। मोलार लिखा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है, मोलार लिखा रहेगा तो इजी। चलो बेटा, मम्मा ये तुमको रखने के लिए, मम्मा ये रखने के लिए, तो अरे यार दैट टोल्ड मी आई शुड हैव सेंड यू द लोकेशन। तो बोलने का था ना मुझे, मेरे को यार, अरे आई वाज टेकिंग कंटीन्यूअस क्लास, जस्ट गॉट ओवर। चलो बेटा, डेंसिटी इज व्हाट बेटा? तुम लोग को ढूंढने में प्रॉब्लम हुआ? डेंसिटी इज व्हाट? मास बाय, बराबर है, इतना तो पता है। तो वॉल्यूम यहाँ पे लिया तो मास अपन डेंसिटी हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, वेट क्या हो जाएगा बोलो फिर? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन मोलैरिटी एंड मोलालिटी।
आज हम लोग ने भी वही पढ़ा ना मोलार। ये हिडन इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से आना चाहिए बेटा। दीज आर द हिडन इंफॉर्मेशन बेटा। लुक, x%, x% बाय वॉल्यूम, एक्स मोलार, एक्स मोलार, याद रहेगा बेटा। और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम, सॉल्यूट नहीं दिया रहेगा तो वेट अपॉन मोलार मास। मोलारिटी में खाली सब कुछ सेम होगा। अरे मोलारिटी में खाली याद रखना, ये नया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है इन लीटर्स। और लिटी लिटी में क्या आएगा बोलो बेटा? ये आएगा। बाकी पार्ट दोनों में कौन है? सेम। क्लियर है? चलो तुम्हारे पोतार के सम अभी करे। इधर गया सम बेसिक। चलो बेटा आ जाते हैं सम बेसिक में। तुम्हारा मोलारिटी मोलारिटी की तरह मैं देख लेता, देख लेती। मोलारिटी मोलारिटी मेरे को देखना पड़ेगा इसमें थोड़ा। बहुत पुराना वाला है मेरे पास, पुराना वाला मतलब। ठीक है, ये सब है सब तुम्हारे इसमें भी। चल बेटा ये ले, पहला इसका बता दे बेटा, ये वाला। व्हाट डू यू मीन बाय 10% एक्वेस सोल्यूशन? चलो 10% मतलब वेट ऑफ सोल्यूट तेरा कितना होगा बोलो बेटा? ऑफ ग्लूकोज, तो वेट ऑफ ग्लूकोज इज वेट ऑफ वाटर विल बी, बराबर है। तो 10 ग्राम डिजोल्व इन 90, ये देख हो गया आंसर, इजी। ये सब मैं बताऊंगा, ये सब मोल वोल तेरे को सब बताऊंगा, मास परसेंटेज बता दिया, पानी ये सब बता दिया। अरे डिफाइन मोलारिटी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मोलारिटी? समझ में आ गया ना? इसमें हम लोग क्या लेते थे? पर केजी। ओके, और ये क्या था? टेम्परेचर चेंज हो जाता था किसमें? मोलारिटी में, बट मोलालिटी नो चेंज। समझ में आया ना? हाँ, आज हम लोग ने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था ना, व्हाट वाज दैट? वेट बाय वेट, याद आ रहा है ना? फिर व्हाट वी स्टडीड? मोल फ्रैक्शन, देन मोलारिटी एंड मोलालिटी। इसका डेफिनेशन पूछेगी तो ऊपर क्या आता था? नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे क्या आता था बोलो? मोलारिटी के नीचे वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 केजी। बरोबर है कि नहीं? एम आई गोइंग फास्ट? नहीं ना, पक्का ना? श्योर? हाँ, ये देखिए मस्त क्वेश्चन है, ये आता है बेटा। एसर्शन रीजनिंग में भी है। मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बाय टेम्परेचर अफेक्ट वॉल्यूम, बट इसमें क्या रहता है? बट नॉट मास। इन मोलालिटी डोंट हैव वॉल्यूम। ओके, चलो बेटा अभी देखिए ऐसे सम आएगा बेटा। फाइंड मोलारिटी। ये लोग के मेथड से मत करना, मैं जैसे बोल रहा हूँ। क्या लिखा है? बोला मोलारिटी 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन। अच्छा बेटा, आपको ना एग्जाम में ये दे गया, Na का वेट कितना होता है? 23। ऑक्सीजन इज हाउ मच बेटा? 16। H इज 1। तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए? मोलारिटी। आज हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था ना मोलारिटी का, क्या फॉर्मूला है बोल बेटा? नंबर ऑफ मोल, मोल्स नहीं दिया है ना, तो मोल्स की जगह पे तो क्या लिखेगी? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वेट ऑफ सोल्यूट दिया है तेरे को, देख 4.44 ग्राम दिया है कि नहीं? NaOH का मोलार मास तू ढूंढ सकती है इससे, कितना आएगा? 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये वॉल्यूम भी दिया है कि नहीं? आ गया आंसर। कितना इजी है? इजी है ना? श्योर ना? चलो बेटा आ जा। इसमें वहां पे मोलारिटी का और पूछा ही गया। हाँ ये ले, क्या बोला है ढूंढने के लिए? Na2SO4 दिया है, और ml कितना दिया है? 100 ml। ग्राम दे दिया, और क्या दिया है? Na2SO4। Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हम लोग ढूंढ सकते हैं। दे विल गिव, हाँ बेटा, Na का वैल्यू कितना है, S का कितना है। तो अभी तू फॉर्मूला क्या लगाएगी? वही अपना, मोलैरिटी इज व्हाट बेटा? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अभी मेरे को बता, तेरे को वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, कितना दिया है? 7.1 ग्राम। नमक को मैंने किसमें डाला? 100 ml पानी में। तो तेरे को वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए ना, तो 100 ml इज हाउ मेनी लीटर? समझ में आया ना? 100/1000 ना बेटा, तो दैट इज 0.1 ना बेटा। तो कितना हो जाएगा? 0.1। 0.1 को मैं 10⁻⁻1 ले सकता हूँ कि नहीं? मोलार मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है बेटा? मतलब Na2SO4 का आप लोग ढूंढ सकते हैं कि नहीं? हो गया सब इजी। बोलना बेबी, आर यू गेटिंग इट? वेरी नाइस। ये मैंने नहीं बताया, वो बाद में बताऊंगा। आज मैं खाली पहले मोलारिटी मोलालिटी का डायरेक्ट सम है ना, वो मैं तेरे को बताऊँ। रिजल्टेंट रिजल्टेंट, हाँ ये मस्त सम है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तेरे को क्या दिया बोल बेटा? डेंसिटी ऑफ
इज दिस मच. कैलकुलेट मोलालिटी. क्या बोला है? मोलालिटी. अभी तू कैसे करेगी बेटा, मैं तेरे को बता देता. देख, अपने का मोलालिटी का पहले मेरे को फॉर्मूला बता. मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अभी तेरे को कितना मोलार दिया है? 3 मोलार. आज हम लोग ने आज पढ़ा था कि नहीं? एक्स मोलार का मतलब क्या होता था बोलो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा अभी आप मेरे को बताओ, 3 मोलार मीन्स व्हाट? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स तेरे को कितना है बोलो? 3. और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बोलो बेटा? बोलो, वेट ऑफ सोल्यूशन, सॉरी. हाँ, सॉल्वेंट ना. फॉर्मूला में सॉल्वेंट आता था ना, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 1 kg ना. 1 kg इज हाउ मच बेटा? 1000 ग्राम. दिस इज द हिडन इंफॉर्मेशन आई गेव यू ना टुडे. यही का बेटा आ रहा है ना. एक्स मोलार का मतलब क्या होगा बेटा? समझ में आ रहा है ना? वैसे ही. अब ये हो गया बेटा आपका, क्लियर है? अभी बेटा देखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब अभी तेरे को पूछा क्या है? मोलालिटी पूछा है. तेरे को नंबर ऑफ मोल सोल्यूट पता है क्या? हाँ, ये कैपिटल एम है ना बेटा. ओ आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी. माय बैड, माय बैड. कैपिटल एम है ना बेटा. हाँ, कैपिटल बोला नहीं आपने बेटा, बोलना चाहिए ना बेटा. हाँ या. अरे बेटा, इट इज कैपिटल एम ना, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज हाउ मच? 1 लीटर. 1 लीटर इज हाउ मेनी ml? बरोबर है. तो दिस वाज हिडन इंफॉर्मेशन. देखिए, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है, सब में नहीं दिया है ना. अब सब में तेरे को डेंसिटी दिया है बेटा. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज हाउ मच बेटा? 1.25 ग्राम पर ml. अब बेटा इससे तू क्या, तेरे को अभी वेट ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है. वेट ऑफ सॉल्वेंट तो दिया ही नहीं. तो कैसे करेगी पहले? तो हम लोग वेट ऑफ सोल्यूशन निकाले पहले. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेट ऑफ सोल्यूशन बोलो बेटा? वेट ऑफ सोल्यूशन इज व्हाट? सोल्यूशन. अरे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा? हाँ, वे वहां तो वेट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और नॉट? टेल मी. वॉल्यूम इंटू व्हाट? डेंसिटी. कैन आई डू और नॉट? टेल मी. वॉल्यूम इज हाउ मच? 1000. क्यों ml में मैंने लिया? बिकॉज डेंसिटी वाज गिवन इन ml. तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो कितना मिलेगा? 1250. क्या मिलेगा? ग्राम्स. मिल गया वेट ऑफ सोल्यूशन. अभी तेरे को क्या करना पड़ेगा? सॉल्वेंट ढूंढना है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स तो पता है ना बेटा, देखना. तो सॉल्वेंट कैसे निकालेगा बेटा? सोल्यूशन का तेरे को मिल गया, तो और तेरे को किसका वेट ढूंढना पड़ेगा? सॉल्यूट. कैन यू फाइंड मास ऑफ सॉल्यूट? कैसे? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? बोलो ना. वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. तेरे को नंबर ऑफ मोल्स दिया है सब में? 3. वेट ऑफ सॉल्यूट डोंट नो. मोलार मास ऑफ सॉल्यूट यू कैन फाइंड और नॉट? टेल मी. NaCl है ना. एक Na का वेट कितना होता है? 23. क्लोरीन का कितना होता है? दोनों को ऐड कर तो 58.5 मिलेगा कि नहीं? अब तेरे को देयरफॉर क्या मिल जाएगा बोल बेटा? ये लोग का मेथड मत करना, पागल जैसा किया है. अभी क्या करेगी बोल बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे करेगी बोल? अरे बोलो बेबी. दिस इनटू दिस. बराबर है कि नहीं? तो ये तू करेगी बेटा तो कितना मिलेगा तेरे को? 175.5 मिल गया तेरे को वेट. अब तेरे को पास किसका वेट है बोल? सोल्यूशन का भी वेट है, सॉल्यूट का भी है, तो तेरे को सॉल्वेंट मिल जाएगा. देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी हाउ मच? 1250 माइनस 175.5. तो आंसर कितना आएगा तेरा? माइनस करना. अरे करना. कैलकुलेटर मारने फटाफट. कितना है? तो फिर अरे 250 माइनस 175.5 कर. आज ही करना है बेटा. 1075. 74.5 होगा. देख बेटा, अभी बेबी यार 75.5 ना. ये देख मैंने कर दिया. चल, हम लोग टाइम पास कर रहे हो गया. अब तेरे को क्या मिल गया? ये मिल गया कि नहीं?
लेकिन ये ग्राम में है, तो तुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना था बोल? ऊपर जाया जाएगा। आ गया आंसर। थोड़ा लेंथी समझा, लेकिन अच्छे से यहाँ ये लोग का मेथड करेगी कुछ नहीं समझेगा। लॉजिकली किया कि नहीं बोलो बेटा? आया कि नहीं बोलो पक्का? अरे बोलो आया कि नहीं? कैसे किया, कुछ समझा गया? एम आई गोइंग फास्ट? श्योर ना? यही का आया ना बेटा ये? कॉपी करना था क्या आप लोगों को ये? कुछ समझेगा नहीं ना इसमें, अच्छे से लिखना चाहिए था मुझे। कोई बात नहीं, मैं तुमको ऐसा सोल्यूशन सेंड कर दूंगा ना, डोंट वरी। समझा बेटा? ये देख यहाँ का ये लोग का कुछ समझेगा नहीं तेरे को। ये किया ना हम लोग ने कि नहीं किया? चल कर ले बेटा फटाफट। क्या बोला है ढूंढने के लिए? मोलैरिटी। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला बोल बेटा? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू, बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट कितना दिया है? 5। इसका कितना होता है मालूम है? NaOH का 40 होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml, तो कितना हो जाएगा बेटा? 0.50 आगे आंसर। क्या दिया बोल बेटा? कैलकुलेट मो ला 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 लिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला बोल बेबी। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या करेगी बोल बेटा? मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तेरे को कैसे पता चलेगा कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट है? किसको किसमें डाला? इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन, तो बेंजीन इज योर दिस थिंग। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? 2.5 ग्राम। एसिटिक एसिड का मोलार मास आप ढूंढ सकते हो, 60 आता है बेटा। वेट ऑफ सॉल्वेंट लेकिन ग्राम में दिया है, तो इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा? केजी। बराबर है? हो गया सब? ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 10⁻³ आ जाएगा बेटा। क्लियर है? मोलैरिटी, मोलैरिटी में कुछ दम है क्या बोलो? नहीं है ना बेटा? फटाफट हो जाएगा बेटा, करोगे तो आएगा। बेटा पहले बता देता ना, 10 जैसा कुछ केमिस्ट्री नहीं है 11 12 में, इट इज टोटली डिफरेंट। हाँ। हो आ जाओ। क्या लिखा है? मोल फ्रैक्शंस किसका बनाने का तेरे को? NaCl एंड वाटर का। बराबर है? चल, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl का क्या फॉर्मूला होगा बोल बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। NaCl का नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या? नहीं, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? वेट अपॉन मोलार मास लिख सकता हूँ कि नहीं? इसकी जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ? वेट अपॉन मोलार मास लिख सकता हूँ कि नहीं? इसका भी वेट अपॉन मोलार मास यहाँ पे, लेकिन क्या होगा? वाटर। वाटर का मैं W लिख रहा हूँ, इसका क्या था अपना? NaCl, तो Na लिख रहा हूँ, चलेगा ना बेटा? वेट दिया इसका, देख बेटा कितना दिया है? 5.85। मोलार मास कितना होता है इसका? 58.5। 5.85, 58.5, 90। वाटर का कितना होता है? 18। आ गया आंसर, एक का आ गया, फिर दूसरे का क्या करोगे? 1 माइनस। समझ में आ गया ना? हाँ देखो, ही किया पूरा, देखा? तो ये तुम्हारा क्या था बोलो बेटा? मोल्स का था। क्या था? मोलैरिटी का। मोलैरिटी का मैंने सब कर दिया बेटा तुम्हारे सब। ये हाँ, इसमें कैसे करेगी बेटा? देखिए हिडन इंफॉर्मेशन है। क्या बोला है तेरे को ढूंढने के लिए? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन 30% बाय मास इन X% बाय मास का मतलब क्या होता था? X% मतलब वेट ऑफ सॉलिड इज X, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 100 माइनस। तो इसमें क्या करेगी बोल बेटा? 30%, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है अपना? बेंजीन है ना बेटा? B लिख दिया बेटा, तो कितना हो जाएगा? 30। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन है तुम्हारा? कार्बन टेट्राक्लोराइड ना? हो गया? अब बेटा तेरे को बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H6। और CCl4 का कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, दे विल गिव यू द वेट ऑफ कार्बन। और इससे तू इसका बेंजीन का ढूंढ सकती है, कितना आएगा? मोलार मास 78। और CCl4 का भी तू ढूंढ सकती है बेटा, 154 आएगा तुझे। क्लियर है?
अब तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए? मोल फ्रैक्शन ना, खाली बेंजीन का बोला है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा बोलो बेटा? वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मोलार मास ऑफ बेंजीन अपॉन वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मोलार मास ऑफ प्लस वेट ऑफ क्या होगा? तो ये सब अभी तेरे को पता है ना, वेट तो वो लोग ने कितना नहीं दिया था बेटा, लेकिन कितना है तो बेटा 30। तो यहाँ पे ऊपर क्या डालेगी? 30/78। यहाँ पे भी क्या आएगा? 30 वाटर का कितना है आपने को इसका, सॉरी वाटर क्या है, ये क्या है, CCl4 का कितना है यहाँ? 70 अपॉन, कर पाएगी? पक्का? श्योर? तो बेटा मैंने तेरे को आज कौन सा कॉन्सेप्ट करवाया पता है क्या? मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अभी मैं तेरे को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करवाता हूँ बेटा, ठीक है? एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता है, वो थोड़ा लेंथी होगा। पहले मैं तेरे को मोल का बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? मोल। अरे यार मोल का PDF क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? एक मिनट बेटा, मोल कहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है तुमको यहाँ पे? ये खाली डॉग दिख रहा है ना, डॉग क्या है डॉग? हाँ, मेरा पेपर है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे क्या खुल गया, क्या करने का था? ओ ओ, ये तुम्हारा वो 10th वाला ही है बेटा, तेरे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। चल तेरे को पहले है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देता हूँ, सुन बेटा। बेटा अकेला जो होता है उसको क्या कहते हैं बोलो बेटा? ऑल दीज आर व्हाट बेटा? एटम। दिख रहा है कि नहीं? ये यूनियन हो गया तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल। और ये क्या है? फॉर्मूला। कंपाउंड हो गया कि नहीं? MM। अभी बेटा मैंने ना ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना था? इसमें कौन सा एलिमेंट तुझे दिख रहा है बोल बेटा? CH, और C कितनी टाइम्स है? 6 टाइम्स। ये कितना टाइम है? 12 टाइम। ये रेशियो ले ले, इसका क्या हो जाएगा? 1:2:1 हो जाएगा कि नहीं? तो अब जो तेरे को क्या मिलेगा? हम नहीं कार्बन आर देयर नाउ, टेल मी। कार्बन इज 1, H is 2, O is, so that becomes your empirical formula, ratio of all the atoms। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बोल बेटा? एसिटिक एसिड लिखा है कि नहीं बोल बेटा? कार्बन कितना है इसमें बोल? H कितना है? O कितना है? कार्बन H लिखा, रेशियो ले ले, क्या मिला बेटा तेरे को? ये मिला कि नहीं बोलो बेटा? तो ये तेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। बेंजीन लिखा बेटा, बेंजीन लिखा तो क्या था बोल बेटा? C6H6। कार्बन कितना है? 6, H कितना है? 6, रेशियो ले ले कितना बना? CH। ये तेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना था? H2O। H कितना था? 2, O कितना था? 1, रेशियो ले ले। मतलब मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल इसमें दोनों में क्या आया? सेम आया कि नहीं बोल? अब बेटा मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है बेटा, ये देखते। चल बेटा, ये क्या था तेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये क्या था तेरा? बोलो ना बेबी। ये तेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहाँ पे तेरा ये क्या है? तेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करने का है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेगी बोल? वेरी गुड, किससे मल्टीप्लाई करेगी? इसको इसमें कन्वर्ट करने का तो किससे मल्टीप्लाई करेगी? इसको इसमें कन्वर्ट करने का तो किससे मल्टीप्लाई करेगी? 6 से ना। इसको इसमें कन्वर्ट करने का तो मतलब ये तेरा एक होल नंबर आ रहा है कि नहीं बोल बेटा? इसको हम लोग n बोलते हैं, मतलब इट कैन कीप्स ऑन चेंजिंग ना बेटा। ये समझ में आ गया? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या हो गया बोल बेटा? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, वेर n इज योर होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब बेटा अपने को 3 फॉर्मूला याद रखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट बेटा? व्हाट इज n? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, अच्छा अभी मॉलिक्यूलर वेट का और एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये याद रख दो। अभी तो इसके जगह पे क्या डाल सकती है?
मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस और नॉट, टेल मी। तो तुझे क्या मिलेगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपन एम्पेरिकल वेट। इतना समझ में आ गया? अब बेटा तेरे को एग्जाम में ऐसा सम आएगा, देख बेटा क्या लिखा रहेगा बेटा, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या लिखा रहेगा बोल बेटा? फाइंड मॉलिक्यूलर containing 40% कार्बन एंड दिस मच हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कभी भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा रहेगा तो टोटल परसेंटेज कभी भी कितना होना चाहिए? कार्बन का कितना दिया बोल बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन दिया, दोनों को ऐड करते को 100 आ रहा है क्या? टोटल 100 आ रहा है क्या? कार्बन इज हाउ मच गिवन एंड दिस इज हाउ मच? 6.6। ऐड देम अप, इज इट कमिंग 100? मीन्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अब कोई भी एलिमेंट दिया, टोटल ऐड करने का अगर 100 नहीं होगा तो रिमेनिंग विल बी, तो देयरफॉर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। कितना मिलेगा? ऑक्सीजन मिल गया तुझे ये। तभी ये सम करने के लिए हम लोगों को एक ऐसा टेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? टेबल। पहला ये समझा क्या? पहला जो भी दिया रहेगा, मैंने ये दिया, दोनों का मिलकर 100 है तो ऑक्सीजन एब्सेंट, नहीं है तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। 3 दिया है, तीनों का ऐड करने का 100 आ रहा है तो ऑक्सीजन एब्सेंट, अगर नहीं आ रहा है 100 तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन कैसा होगा? 100 माइनस सम ऑफ ऑल। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा टेक्निक है बेटा, पहले एलिमेंट लिखने का। क्या क्या एलिमेंट था बोलो बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन तो था ना तेरे पास, और ऑक्सीजन हम लोग ने पता किया कि ऑक्सीजन भी है। फिर उसका कंपोजिशन दिया है कि नहीं? इसका कितना दिया था बोल? 40। तो आई रिटर्न हियर व्हाट बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन 40। इसका कितना था बोलो बेटा? इसका कितना मिला मुझे? 50। अच्छा, एटॉमिक वेट सबका पता होता है कि नहीं? तीनों का अपने को 12। अभी क्या करने का तुझे? एटॉमिक रेशियो ढूंढने का। क्या ढूंढने का? उसका फॉर्मूला क्या है पता है क्या? दिस डिवाइड बाय दिस, परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो क्या होगा? 40/12, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। तो तेरे को ये देखिए सब लिखा तूने और उसका आंसर तेरे को ये आया। अब बेटा तीनों में सबसे तीनों में जो ये तीनों नंबर आया ना वो वापस रिपीट कर यार। ये जो आंसर आया वो वापस यहाँ पे क्या करने का? अच्छा, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? इन दिस 3 नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 3.33 द स्मॉलेस्ट। तो ये पूरे आंसर को ये इस यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे लिखा। अब सबको मैंने किससे डिवाइड किया? सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन था ये तीनों में? सबको देख, मैंने 3.33 से डिवाइड, तो मुझे आंसर क्या आया? यही है। तो कभी कार्बन तेरा कितना आया बोल बेटा? कार्बन कितना आया? तो तेरे को मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया 1। एच कितना आया? ओ कितना आया? क्लियर है? एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, अभी बेटा ये जब सम करेंगे ना कभी कभी ऐसा ये आ सकता है 0.9, तो तू इसको क्या लिखेगी बेटा? 1। 1.9 आया तो अप्रोक्सीमेटली 2 करने का, नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने का। सपोज बेटा अगर ये 2.5 आता तो 2.5 को मैं 3 लिख सकता हूँ क्या? नहीं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करता है? 2 से, तो ये आंसर क्या हो जाता बेटा? 5। लेकिन तू अगर एक को 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो सबको करने का मल्टीप्लाई। क्लियर है? तेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया कि नहीं बोल? अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला से तू क्या ढूंढ सकती है? एम्पेरिकल वेट ढूंढ सकती है कि नहीं? वो लोग ने तेरे को और क्या दिया था? वेपर डेंसिटी दिया था। कभी कभी बेटा खाली एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलेगे तो यहाँ पे रुक जाना। अभी तेरे को वेपर डेंसिटी दिया है और तेरे को क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? टेल मी। एम्पेरिकल तूने ढूंढ लिया, अब तेरे को एन चाहिए। एन के लिए तेरे को क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट अपन एम्पेरिकल वेट। एम्पेरिकल फॉर्मूला से तूने एम्पेरिकल वेट ढूंढ लिया कि नहीं बोल बेटा? अभी तेरे को मॉलिक्यूलर वेट दिया है क्या सब में? बट वेपर डेंसिटी दिया है ना, तो तेरे को मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। तो देख अभी मैंने क्या किया? एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल वेट ढूंढा। एम्पेरिकल वेट से बाद में अभी मैं मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हाउ मच इट वाज गिवन? टेल मी बेटा। तो ये मिल गया। अब तो क्या ढूंढेगी? एन, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, तो कितना आ जाएगा? 6। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला था बोल? एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन तेरे को कितना आया? 6। एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने को ये आया था कि नहीं? इसे मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स इट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा अच्छे से? तो आज मैंने तेरे को क्या क्या करवाया? मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल का मुझे कॉन्सेप्ट करवाना है बेटा। मैं ना देखो बेटा, अभी देखो हम लोग फास्ट नहीं जाएंगे बेटा।